This is the second part of the chapter inflation. In the first part, we have learned about the meaning and definition of inflation and various types of inflation. Then we learn about the stagflation, and after that, we have also learned about the Phillips curve. So it is second part of the inflation, and in this part we will going to learn about the theories of the inflation, or this is also a reason. This theory also states the reason behind the inflation, कि इन्फ्लेशन क्रिएट होने के एक्चुअली में क्या रीज़न है. दिस थ्योरी ऑल्सो एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन. सो there are two theories related to inflation. The first theory is a demand pull inflation, demand pull theory, that is the oldest theory. And the second theory is cost push inflation. The second inflation is called the cost push inflation. So we are going to discuss these two theories, and then we will discuss about the effect of inflation. So these are the causes of inflation, and then we will learn about the effects of inflation. So the first theory we will discuss, the demand pull. This is the earliest theory that says when aggregate demand is more than aggregate supply, that means when demand is more as compared to supply, then price start rising and inflation creates. कि जब डिमांड कम सप्लाई के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है तो प्राइसेस राइज होने स्टार्ट हो जाते हैं मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अराइज due to supply shocks and supply side factor, that is the rise in cost. When inflation arises due to rise in the cost of production, that is called the cost push inflation. So we are going to learn one by one these two theories. First theory is demand pull inflation. This theory is the oldest theory of the economics, and it is also called the traditional theory of inflation. कि बहुत पहले ये यूज़ होती थी ये theory. स्टार्टिंग में जो इन्फ्लेशन क्रिएट होने का रीज़न माना गया सिंस कीन्सियन टाइम्स, दैट इज़ ड्यू टू एग्रीगेट डिमांड. So the essence of this theory is that the inflation is caused by an excess of demand relative to available supply. If there is a excess of aggregate demand as compared to aggregate supply, कि अगर हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, देन प्राइस विल राइज. तब प्राइस राइज होनी स्टार्ट हो जाएगी. दैट इज़ द डिमांड पुल इन्फ्लेशन ड्यू टू aggregate demand. When inflation rise due to aggregate demand, that's why it is called the demand pull inflation. So when aggregate demand is more as compared to aggregate supply, मान लो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है. सप्लाई कम इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ती जाती है. डिमांड लेकिन आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होने के लिए टाइम लेता है. हमने अभी डिमांड की, सपोज़ कि हम कॉलेज में कैंटीन में डिमांड कर देते हैं कि हमें चाहिए 200 सैंडविचेस, बट मे बी हो सकता है कि उसके पास इतनी सप्लाई नहीं हो, फिक्स्ड हो सप्लाई, या फिर वो बना भी सकता है तो 100 बना सकता है, 150 बना सकता है. तो वो क्या करेगा, प्राइसेस इंक्रीज़ कर देगा क्योंकि उसे पता है कि डिमांड ज़्यादा है.
तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जब ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई तो प्राइस राइज होने स्टार्ट हो जाते हैं एंड दैट क्रिएट्स द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन. So this is called the demand pull inflation and it arises due to rise in aggregate demand. Now we are going to see the diagrammatic explanation of this theory, why how the price rises due to rise in demand. So ये हमारा ओ एक्स एक्सेस पे इनकम लेंगे, नेशनल इनकम, एंड ओ वाई एक्सेस पे प्राइस लेवल. एस कर्व इज द सप्लाई कर्व. इनिशियली it is upward sloping, then it becomes vertical. ये कीन्सियन इकोनॉमिक्स का डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है that was given by Keynes, and there are many economists also like monetarist की मनी सप्लाई जो रीज़न बताया था कि मनी सप्लाई के बढ़ने से इन्फ्लेशन राइज होती है, डिमांड बढ़ती है और प्राइस राइज होता है, उन्होंने भी दिया था. बट कीन्स का क्या था कहना कि इनिशियली जो है आउटपुट जब तक अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज है तब तक बढ़ता रहेगा. जैसे ही फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी उसके बाद क्या होगा, आउटपुट नहीं बढ़ेगा. दैट्स वाई इट बिकम्स वर्टिकल. तो इनिशियली सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप है, देन उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के बाद वर्टिकल हो गया है. इनिशियल जो फर्स्ट डिमांड कर्व है दैट इज D1 and equilibrium is at this point where demand and supply curve intersect and price determined is P1. When demand rises, then demand curve shifts to upward D1 to D2. जब डिमांड बढ़ी तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया और इक्विलिब्रियम अब इस पॉइंट पे आ गया. सेकेंड इक्विलिब्रियम अब ये है हमारा. तो अब क्या हुआ, देखो सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती है क्योंकि वर्टिकल स्लोप हो रखा है यहाँ पे सप्लाई कर्व. तो सप्लाई जब कांस्टेंट है तो प्राइसेस क्या होगी, राइज होनी स्टार्ट हो जाएगी. बट अगर डिमांड कम हो जाती है तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आ गया और प्राइस क्या हुई, कम हो गई. बट हम यहाँ पे इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूसली प्राइस राइज होना. तो पहले मान लो ये D0 था तो प्राइस P0 है. डिमांड जैसे ही D1 बढ़ी प्राइस बढ़ गई P1, फिर डिमांड बढ़ी D2 प्राइस बढ़ गई P2. तो जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती जाती है तो प्राइस लेवल उतना ही एज कम सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होता जाता है क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कांस्टेंट है. तो डिमांड अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद बढ़नी शुरू होती है तो प्राइस सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होता जाता है क्योंकि आउटपुट देखो, इनकम आउटपुट जो है वो कांस्टेंट है Y0, वो नहीं बढ़ रहा, सिर्फ प्राइसेस बढ़ रही है. सो दिस इज कॉल्ड द डिमांड पुल इन्फ्लेशन. और ये जो गैप है, सपोज डिमांड इंक्रीज हो गई है तो डिमांड इंक्रीज होगी D0 से D1 और सप्लाई तो सेम है, ये डिमांड है ये सप्लाई है. तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द इन्फ्लेशनरी गैप. ये जो इन्फ्लेशन राइज हो रहा है उसको हम इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं. So this is the theory of demand pull inflation. So why the demand pull inflation arise? कि डिमांड बढ़ने के क्या रीज़न है जिससे इन्फ्लेशन अराइज होती है. सो फर्स्ट रीज़न इज डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट. जब एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएट होता है दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ आर करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी,
डिक्लाइंस एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी, की हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी। तो जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है तो हमारी जो गुड्स हैं एक्सपोर्ट की जाती हैं उनकी प्राइस डिक्लाइन हो जाती है। तो मतलब दूसरी कंट्री के लिए हमारे गुड्स सस्ते हो रहे हैं, हमारे लिए तो महंगा है वो, लेकिन दूसरी कंट्री के लिए सस्ता है। मान लो $1 was equal to 63 बिफोर इन 2019, बट अब 2020 में वो 76 का हो गया है। तो उनको पहले 63 रुपीज़ की गुड्स मिल रही थी, 63 रुपीज़ की गुड्स मिल रही थी, मतलब कि $1 पे करके 63 रुपीज़ की क्वांटिटी मिल रही थी, लेकिन अब उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा। पहले $1 में सिर्फ 63 रुपीज़ मिल रहा था और अब $1 में उसे 76 मिल रहा है, मतलब उनको अब ज़्यादा मिलेगा, सस्ता हो गया उनके लिए, चीप हो गया। तो वो क्या करते हैं, डिमांड इंक्रीज़ कर देते हैं, तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ती है। तो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट से जब एक्सपोर्ट बढ़ती है तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो डिमांड इंक्रीज़ होगा और इन्फ्लेशन अराइज होगा। सेकेंड रीज़न एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का है, दैट इज़ हायर डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि फिस्कल पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स कंटिन्यूसली डेवलपमेंटल पर्पस के लिए बढ़ाती जाती है और टैक्सेस को रिड्यूस कर देती है, जो कि एक तरफ तो स्पेंडिंग बढ़ा रही है, बोरोइंग बढ़ा रही है, एक्सपेंडिचर करती जा रही है, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है एक साइड। दूसरी साइड क्या कर रहा है, टैक्स को रिड्यूस कर रहे हैं, तो टैक्स रिड्यूस होने से डिस्पोजेबल इनकम हमारी बढ़ती है। तो दोनों ही साइड से इनकम बढ़ रही है, टैक्सेस के थ्रू भी और स्पेंडिंग के थ्रू भी, तो डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ जाता है और वही डिमांड हमारी प्राइसेस को बढ़ा देता है। थर्ड रीज़न इज़ मॉनेटरी स्टिमुलस टू द इकोनॉमी, कि जब इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ होती है। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्लाइन कर दिया और मनी सप्लाई को बढ़ा दिया। जैसे अभी रिसेंटली आरबीआई ने क्या किया है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सब कम किया है। तो जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी यूज़ होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते ही इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो डिमांड जो है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज़ होने से प्राइस बढ़ेगी। नेक्स्ट रीज़न इज़ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ इन अदर कंट्रीज़, कि अगर दूसरी कंट्री में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो क्या होता है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ रही है कंटिन्यूसली, तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट बढ़ने से इनकम और डिमांड इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट रीज़न इज़ इम्प्रूव्ड बिजनेस कॉन्फिडेंस, कि अगर हमारी इकोनॉमी में बिजनेसमैन जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी डिमांड इंक्रीज़ होती है और प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ जाते हैं। सो दीज आर द रीजन्स ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड थ्योरी, दैट इज़ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो दो टाइप की होती है, दैट इज़ कॉस्ट जो बढ़ने का रीज़न होता है वो दो होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ टू टाइप, वेज पुश and profit push inflation. And third cause may be increase in price of raw materials and other inputs, or rise in the price of crude oil. So these are the also reason which raise the cost of production, but it is mainly two type, wage push and profit push. वेज पुश की वजह से, कि वेज इंक्रीज़ होने की वजह से और प्रॉफिट इंक्रीज़ होने की वजह से। सो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज़ वेज पुश. Wage push inflation, suppose in any country, if trade union is powerful or stronger, then they can
raise their monetary income, money wage फ्रॉम द प्रोड्यूसर। कि जब अगर ट्रेड यूनियन स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, तो वो क्या करते हैं कि जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्रिएट हो रही होती है तो या फिर वैसे भी वो अपनी मनी वेज जो है ईयर ईयर इंक्रीज़ करवा लेते हैं जहाँ पे ट्रेड यूनियन स्ट्रॉन्ग है। तो इससे लेबर की मनी वेज बढ़ गई। लेबर की मनी वेज बढ़ने से क्या होगी, फॉर्म की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें वेज इंक्लूड होता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से जब कॉस्ट बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसका इफेक्ट प्राइस पे आएगा, प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो मेनली ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में जहाँ ट्रेड यूनियन स्ट्रॉन्ग पावरफुल होता है वहाँ पे वेज पुश इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। सेकेंड रीज़न इज़ द प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन, कि व्हेन द कॉस्ट rises due to a rise in the profit margin by the firm, like and if under monopolistic competition, oligopolistic competition, कि अगर इम्परफेक्ट मार्केट में फर्म क्या करती है, अपनी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लेती है। प्रॉफिट मार्जिन इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए क्या करती है, प्राइसेस को राइज कर देती है। तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, और जैसे इंक्रीज होगी कॉस्ट तो सप्लाई कर्व क्या होगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारी प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कॉस्ट बढ़ती है तो हमेशा प्रोडक्शन कम हो जाता है। सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वेज पुश ड्यू टू इंक्रीज इन वेजेस एंड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रॉफिट। नाउ लेट्स लुक एट द diagrammatic explanation. This is aggregate demand curve. On OX axis we are taking output and OY axis price level. So aggregate demand curve is AD. The initial supply curve is AS1. So equilibrium is at point E1 where demand and supply is equal. So output is Y1 and price is P1. अब अगर वेज और प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन बढ़ेगा। एंड व्हेन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन राइजेस द एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट। एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो सप्लाई कम हो जाती है। तो सप्लाई कर्व हमारा शिफ्ट हो गया AS1 से AS2। अब इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया, E2 पॉइंट पे, जहाँ पे डिमांड और न्यू सप्लाई कर्व इक्वल है। तो अब इस पॉइंट पे देखें तो ये अब प्राइस है P2 और आउटपुट इज Y2। तो आउटपुट तो रिड्यूस हो गया बट प्राइसेस राइज हो गए हैं। तो सप्लाई साइड में कॉस्ट की वजह से आउटपुट डिक्लाइन हो जाता है, और आउटपुट डिक्लाइन हो रही है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दो साइड से अराइज हो सकती है, वेज की वजह से और प्रॉफिट की वजह से, जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई को लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा और जिसकी वजह से आउटपुट घट जाएगी और प्राइसेस बढ़ जाएंगे। दैट क्रिएट्स द इन्फ्लेशन। नाउ we are going to discuss what are the causes that create the cost push inflation. So cost push inflation के अराइज होने के कुछ रीज़न है। द फर्स्ट रीज़न इज सप्लाई शॉक। सप्लाई शॉक इज़ व्हेन देयर इज़ अ बिग इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ क्रिटिकल कमोडिटीज़। सपोज करो कि कुछ प्राइसेस, कुछ कमोडिटीज़ की प्राइसेस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जैसे ऑयल है, तो उससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है फॉर्म की। तो हर एक फॉर्म की अगर फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती है तो उससे हर एक फॉर्म की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्राइसेस राइज हो जाते हैं, क्योंकि हमने रियल लाइफ में भी क्या देखते हो, क्रूड ऑयल की प्राइसेस जब भी बढ़ती है, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती है, तो उससे गुड्स की प्राइसेस राइज हो जाती हैं, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। सेकेंड रीज़न हायर वेजेस। अभी हमने पढ़ा था वेज पुश, वेजेस की वजह से कि अगर फॉर्म
जो है कॉस्ट का लार्ज परसेंटेज वेज पे खर्च कर रही है और लेबर यूनियन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे और मनी वेज इंक्रीज़ करवा लेती है, तो उससे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा और उससे हमारी प्राइसेस राइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड इज़ द इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होता है कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी या डेप्रिसिएशन होता है अगर करेंसी का, तो हम हायर प्राइसेस पे, सिर्फ हमारी गुड्स की प्राइसेस नहीं, जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उसकी प्राइस कब बढ़ती है, जब हमारी करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है। मान लो पहले थी 63 की और अब 76 है, तो पहले हम 63 रुपीज़ पे कर रहे थे एक कि कोई क्वांटिटी परचेज़ करने के लिए, कोई मान लो $1 की कोई चीज़ है तो हम 63 परचेज़ कर रहे थे, बट अब कितना हम पे कर रहे हैं, 76। तो इम्पोर्टेड गुड्स की प्राइस जो है डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन की वजह से इंक्रीज़ हो जाता है। हायर टैक्सेस की अगर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज़ कर दे, इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी अगर इंक्रीज़ होता है तो वो फॉर्म की कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन बढ़ाएगी, और जीएसटी जब भी इंक्रीज़ होगा तो फॉर्म क्या करती है, प्राइसेस इंक्रीज़ कर देती है गुड्स एंड सर्विसेज की, क्योंकि गुड्स में ही जो हमारा जीएसटी है गुड्स की प्राइस में इंक्लूडेड होता है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अराइज होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ द इन्फ्लेशन, कि एक्चुअली में इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है। ये तो था हमारा रीज़न कि क्यों क्रिएट होता है। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर अफेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन, की बहुत सारी टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे इन्फ्लेशन की वजह से अफेक्ट होती हैं। बट फर्स्ट थिंग दैट इज़ इफेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन इज़ द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, कि जब भी प्राइस राइज होती है तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो घट जाती है। क्योंकि मान लो पहले मैं प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होता है, सपोज मॉनेटरी इनकम और रियल इनकम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मॉनेटरी इनकम में कि जितनी मनी इनकम मैं अर्न कर रही हूँ, रियल इनकम कि उस मनी इनकम से मैं कितनी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर पा रही हूँ। तो जब भी प्राइस बढ़ती है तो रियल इनकम क्या होता है, कम हो जाता है। तो मान लो मेरी रियल इनकम 1000 है, सॉरी मॉनेटरी इनकम 1000 है और गुड्स की प्राइस है 20 रुपीज़, तो मैं कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकती हूँ, 50। सपोज अब गुड्स की प्राइसेस बढ़ के 50 से 100 रुपये हो गई, तो अब कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकती हूँ, 10। तो परचेजिंग पावर जैसे ही प्राइस बढ़ती है डिक्लाइन हो जाती है। तो गुड्स इन्फ्लेशन जो है पब्लिक की परचेजिंग पावर को, इकोनॉमी की परचेजिंग पावर को डाउन कर देती है। सेकेंड इफेक्ट इज इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन पे इन्फ्लेशन का क्रिएट क्या होता है। प्रोडक्शन पे अगर देखें तो एक टाइप से पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जब भी प्राइसेस राइज होने शुरू होते हैं तो दोनों ही टाइप की गुड्स, प्रोडक्शन गुड्स और कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, दोनों ही टाइप की गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। क्योंकि जब प्राइस राइज होती है तो प्रॉफिट, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और जब प्रॉफिट होगा तो गुड्स ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बढ़ा देती है फॉर्म। थर्ड इज़ ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन जो है वो कम्युनिटी की जो मनी इनकम है उसको इंक्रीज़ कर देती है, क्योंकि मनी इनकम में जो मॉनेटरी इनकम पढ़ते हैं हम, उसमें प्राइसेस इंक्लूड होता है। रियल इनकम तो कम हो जाती है, लेकिन मनी इनकम जो नेशनल इनकम है, जो करंट प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं, वो बढ़ जाती है। तो उससे स्पेंडिंग क्या होती है, बढ़ जाती है, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो प्रोडक्शन, जब यहाँ पे हमने देखा कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इनकम जो है लोगों की वो राइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। इफ़ेक्ट ऑन बिजनेस एंड ट्रेड, बिजनेस एंड ट्रेड पे जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट
आता है। इन्फ्लेशन जो है इंटरनल ट्रेड को भी बढ़ाता है। इन्फ्लेशन जब भी आता है तो जिससे कि इनकम एंड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती है, क्योंकि इन्फ्लेशन जब डिमांड बढ़ रही है कंटिन्यूसली, तो डिमांड बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगा। बट अगर एक्सपोर्ट के टर्म में देखें तो जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारी डोमेस्टिक गुड्स की प्राइस ज़्यादा है तो लोग फॉरेन कंट्री में उसकी डिमांड कम हो जाएगी, जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हो जाएंगे। बट बिजनेस फॉर्म्स को प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जब प्राइस ज़्यादा मिल रहा है इन्फ्लेशन के टाइम में, डिमांड बढ़ रही है, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। इफ़ेक्ट ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंस की गवर्नमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा, तो इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट की रिवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन टाइम में हमने क्या पढ़ा था फिस्कल पॉलिसी में कि इन्फ्लेशन के टाइम में गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को बढ़ा देती है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। सिमिलरली पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ कर देती है, क्योंकि गवर्नमेंट को ऑलरेडी बहुत सारे पर्पस के लिए मान लो प्रोजेक्ट्स कोई बना रही है, तो जब प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ रही है तो उनकी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, रॉ मटेरियल की प्राइस भी बढ़ रही है, तो वहाँ पे खर्चा ज़्यादा होगा पहले जितना हो रहा था उसके कंपैरेटिवली, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी साथ में बढ़ जाता है। टैक्सेस भी बढ़ते हैं तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इफ़ेक्ट आता है, अगर इन्फ्लेशन जैसे हमने टाइप पढ़ा था क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग, रनिंग, तो अगर इन्फ्लेशन विद इन 3% है, माइल्ड है इन्फ्लेशन रेट, देन इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी। कि ये कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो बढ़ाएगा, लेकिन एक टाइप से इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है, क्योंकि ऐसी इन्फ्लेशन बिजनेस और ट्रेड को बढ़ाएगा, प्लस हमने देखा प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, ग्रोथ को बढ़ाने में प्रमोट करती है। तो अगर माइल्ड इन्फ्लेशन रेट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डिज़ायरेबल होता है, कि थोड़ी इन्फ्लेशन 3% इन्फ्लेशन तक ये बेस्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी सिचुएशन जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको एक्सपैंड कर देती है, जिससे कि ग्रोथ रेट बढ़ता है। बट हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को लोअर कर देती है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाएगा, अनसर्टेनिटी होगी जब ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो माइल्ड इन्फ्लेशन रेट प्रमोट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल द हाई इन्फ्लेशन रेट टेंड्स टू लोअर द इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, की कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट आता है। बट इन्फ्लेशन के टाइम में एक्चुअली में कौन बेनिफिट गेन करता है और किसको लॉस होता है वो देखते हैं हम। हेयर आर द लूजर्स एंड विनर्स कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन जब भी क्रिएट होता है तो किसको बेनिफिट होगा और किसे लॉस होगा। अगर हम विनर्स की बात करें कि जिसको बेनिफिट होगा, तो वो है डेटर ऑन फिक्स्ड रीपेमेंट प्लान्स की। जो डेटर हैं जिन्होंने डेप्ट ले रखा है, अगर मान लो उनका रीपेमेंट प्लान फिक्स्ड है, अगर फिक्स्ड नहीं होता, फिक्स्ड और वेरिएबल दो टाइप की रीपेमेंट होती है, कि प्राइस के चेंज होने से हमारे जो रीपेमेंट इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगा, वो चेंज होता जाएगा। तो अगर मान लो इन्फ्लेशन बढ़ी तो डेटर का रीपेमेंट प्लान जो है बढ़ जाएगा, इंस्टॉलमेंट्स बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर फिक्स्ड है तो प्राइस कितना ही बढ़े, उनका जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं बढ़ेगा। तो डेटर विद फिक्स्ड रीपेमेंट प्लान गेन्स। सेकेंड, गवर्नमेंट विद हाई पब्लिक सेक्टर डेप्ट, की गवर्नमेंट जो है जिन्होंने बहुत सारे डेप्ट ले रखे हैं पब्लिक सेक्टर के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए, दूसरी कंट्रीज से, सेंट्रल बैंक से,
तो अगर इन्फ्लेशन क्रिएट होता है और उन्होंने डेब्ट ले रखा है, लोन ले रखा है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बेनिफिट के टर्म में आता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट मेनली जो लोन लेती है वो फिक्स्ड उस पे चलता है, फिक्स्ड रेट पे चलता है, फ्लेक्सिबल पे नहीं चलता। तो फिक्स्ड वाले को क्या हो रहा था, अभी डेटर को बेनिफिट, ऐसे ही गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा। जो लैंड और फिजिकल एसेट्स के ऑनर्स हैं उनको भी बेनिफिट होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ साथ उनकी जो प्राइसेस है वो बढ़ जाती है और उससे उन्हें बेनिफिट होगा। फर्म्स हु कैन कट देयर रियल वेजेस, की इन्फ्लेशन के टाइम में जो फर्म्स मनी वेज रेट नहीं बढ़ा पाती हैं, कट कर देती है रियल वेज, मतलब कि मनी वेज तो बढ़ा दिया उन्होंने लेकिन रियल वेज को कट कर दिया। मान लो कि ट्रेड यूनियन ने मांग की कि 10% हमारी वेज बढ़ा दो, ठीक है बढ़ा दिया, लेकिन फर्म क्या करती है, उसका 10% क्या है, प्राइस में इंक्लूड होगा, कॉस्ट है वो, तो 10% उधर प्राइस बढ़ा दी, लेकिन 10% तो मनी वेज बढ़ा दी, बट क्या करती है फर्म, प्राइस 15% बढ़ा दे, उससे क्या होगा, रियल वेज घट जाएगा। मनी वेज तो 5%, 10% ही बढ़ाया, लेकिन प्राइस कितना बढ़ा दी, 15%, तो 5% का क्या हुआ, बेनिफिट हो गया फर्म को। 5% फिर भी उसे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जितनी वेज बढ़ाई है, जितनी कॉस्ट बढ़ी है उसकी, उससे ज़्यादा तो वो प्राइस बढ़ा रहा है। तो जो फर्म्स रियल वेज को कट कर सकती है, प्राइसेस को ज़्यादा इंक्रीज करके, उनको बेनिफिट होता है। अब लूज़र्स कौन कौन है, जो सेवर्स हैं, क्योंकि परचेजिंग पावर डिक्लाइन होगी, परचेजिंग पावर की ज़्यादा पैसे तो हमारी स्पेंडिंग में चली जाएगी, जब प्राइस बढ़ेगी तो हमारी सेविंग्स डिक्लाइन हो जाएगी, तो सेवर्स को लॉस होता है। रिटायरीज लिविंग ऑन फिक्स्ड इनकम, जिनकी फिक्स्ड इनकम है, जो रिटायरमेंट पेंशन आ रही है जिनकी, उनकी इन्फ्लेशन में परचेजिंग पावर डिक्लाइन हो जाती है, तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, और एक्सपेंडिचर बढ़ने से उनको लॉस होता है। वर्कर्स जिनकी फिक्स्ड इनकम है, मान लो 500 रुपये पर दिन के कमाते हैं या 200 रुपये पर डे कमा रहे हैं, तो जब प्राइसेस बढ़ती है तो उन्हें लॉस होता है, क्योंकि उनकी रियल इनकम घट जाती है, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज नहीं कर पाएंगे वर्कर्स, तो फिक्स्ड इनकम वाले वर्कर जो होते हैं वो, उनको लॉस होता है। बोरोवर जो वेरिएबल रेट्स पे बोरो कर चुके हैं, कि जैसे जैसे इकोनॉमी में प्राइस चेंज होगी, उनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वैसे ही चलेगा, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे जो रेट है वो बढ़ जाता है। मान लो प्राइस बढ़ी तो उनका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन के टाइम पे पूरी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी हो जाती है, पूरी इकोनॉमी अगर देखें तो अनसर्टेन होती है कि प्राइसेस जब कंटिन्यूसली राइज हो रहे हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे नेगेटिव आता है। एक्सपोर्टर्स हैं वो भी लूज़र्स हैं, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगी तो डोमेस्टिक गुड्स की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड कम होगी फॉरेन मार्केट में, तो एक्सपोर्ट घटेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट जो है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो दीज आर द लूज़र्स एंड दीज आर द विनर, तो इनको गेन होता है और इन्हें लॉस होता है। ये इम्पैक्ट है कि इन्फ्लेशन का, कि किसे गेन होगा और किसे लॉस होगा। सो दिस इज़ अबाउट द थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। आई होप समझ आया होगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, देन we discussed the various effects of inflation, and then the impact of inflation, ki who are the winners and losers during the time of inflation. So this is all about the theories of inflation. Thank you for watching.